one isolated incident जिसमें हमें डर का एहसास होता है. There are certain ways in which our minds and bodies react to that incident. And then there are some of us who have grown up and stayed consistently for a significant period of time in an environment of constant fear. Um, इस विषय पे मैंने पहले भी जो चर्चाएं की हैं, आई हैव गिवन वेरियस एग्जांपल्स. फॉर इंस्टेंस, देर इज अ रीजन जहां पे बहुत समय से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. लेट्स फॉर एग्जांपल द कश्मीर रीजन. वहां के जो लोग हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, they have lived somewhere at the back of their mind all the time कि कभी भी कुछ भी हो सकता है. And that same kind of Sorry. concept, no problem, and that same kind of concept also applies, unfortunately and tragically, even in the home setting, where for a number of reasons there might be a lot of strife and trouble and violence at home. Then the children of that particular home and household experience the similar thing. And the reason I'm sharing all these examples is that जहां तक अपने देश की राजधानी का सवाल है, दिल्ली का सवाल है, एंड दिल्ली एनसीआर का सवाल है, ये बहुत समय से हम मान के चलते हैं दैट बाय एंड लार्ज इट इजंट द सेफेस्ट एनवायरनमेंट, पर्टिकुलरली फॉर विमेन. और इस मुद्दे पे बहुत चर्चा हुई है, बहुत कुछ लिखा गया है. Successive governments have tried to resolve the problem through various methods. पर दुर्भाग्यवश ground reality remains that there is and there seems to be this constant omnipresent feeling of threat and fear that many women in the national capital region have begun to live with. हाल ही में एक बहुत सुंदर हॉरर सीरीज आई थी amazon प्राइम पे. इट वाज कॉल्ड खौफ. और Hmm. although it was a horror series, उसमें जिस तरह से, एंड इट्स डन वेरी ब्यूटिफुली इन माय ओपिनियन, जिस तरह से दिल्ली एक तरह से एक पात्र बन गया है, एंड इट प्लेज ए वेरी इसेंशियल रोल, क्योंकि इट एड्स टू द प्रोटैगनिस्ट, जो लड़की ग्वालियर से आती है शिफ्ट होके, द वे इन विच द सिटी ऑफ दिल्ली ऑल्सो एड्स टू the sense of doom and fear that that protagonist has. It is just one kind of a creative way of uh, sharing that threat perception which a lot of women face. Joining us today in an episode titled Devi Shakti, because उस तरह का फियर, उस तरह के फियर में जीना, उससे कॉम्बैट करना, उसके अगेंस्ट रिजिलियंस बिल्ड करना, एंड डिस्पाइट दैट टू explore yourself, to be out there, to evolve, to grow, to learn. You need a certain kind of resilience. We feel there is Devi Shakti behind that. So, joining us, in fact, is a very appropriate person to talk about this, because she's a relatively young individual. Of course, she's a woman, but also she's someone who straddles two very different worlds within Delhi. तो एक ऑन द वन हैंड वो थिएटर में बहुत काम करती हैं एज एन एक्ट्रेस, and on the other hand, she's also a corporate employee, a corporate executive. And I think both those seemingly very different and contrasting worlds also have certain commonalities. और उनमें से एक
again goes back to that whole feeling of safety versus fear. So I'm very, very happy and glad that Neha has made the time to be with us. And I would like to welcome her and thank her for making the time to do this. So, Neha, a very warm welcome. Yeah, thank you, Karthik. Thank you for inviting me as well. So, as you say कि दिल्ली में बहुत प्रॉब्लम है और दिल्ली इज अ रेप कैपिटल एज वेल, है ना? अभी रेप कैपिटल का भी टैग दिया गया है। आई थिंक इट इज बिकॉज क्योंकि एक टीयर वन सिटी होने के बाद भी अगर ये केसेस बढ़ रहे हैं तो व्हाट अबाउट टीयर थ्री, टीयर फोर? उनकी तो कोई बात ही नहीं कर पाएगा ना। दिल्ली तो हमेशा एक तरह से रहती है, चर्चों में रहती है ना, न्यूज हेडलाइंस में रहती है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ हमारे प्राइम मिनिस्टर्स रहते हैं ना, सारे मिनिस्टर्स यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद अगर रेप कैपिटल है तो कहीं ना कहीं गलती है जो हम नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं, नहीं काम कर पा रहे हैं। सो एज आई से कि दिल्ली इज नॉट सेफ फॉर एनी वुमन, आई वुड सजेस्ट। इससे अच्छा आप कहीं और चले जाओ, कहीं और रह के काम करो। मुंबई इज ऑल्सो सेफ। मुंबई पूरा थिएटर के लिए हब है, एक तरह से फिल्म सिटी है, ठीक है। बट एज अ दिल्ली हाइट आई वुड सजेस्ट कि दिल्ली इज नॉट सेफ। अगर आपको काम करना है तो आप बाहर रहिए। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ भी कह रही हूँ क्योंकि मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस रहे। एज यू से कि मैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉय भी हूँ, थिएटर भी करती हूँ। तो इससे क्या डिफरेंट है कि थिएटर करती हूँ तो ऐसा नहीं है कि शो मेरे अकॉर्डिंग चलेगा, है ना? तो हमारे थिएटर में जैसे लेट भी हो रहा होता है ना, तो सब लोग यही कहते हैं कि लड़कियों को भेज दो, लड़के देख लेंगे काम। वो एक चीज आ जाती है। बल्कि थिएटर में एक होता है ना, माइंडसेट बहुत ओपन हो जाता है। Hmm. इट इज नॉट अबाउट कि हम लोग बहुत डिफरेंट सोचते हैं एज Hmm. नॉर्मल लोगों से ना। Hmm. तो Hmm. बहुत ओपन होने के बाद भी ये चीज आ जाती है बीच में कि लड़के रुक जाते हैं, लड़कियां चली जाए, है ना? तो ये है एक पॉइंट जिससे मेरा भी रहा एक्सपीरियंस। इवन हर लड़की का रहा होगा, नॉट अबाउट थिएटर ओनली। कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज हैं, लेट नाइट मीटिंग्स होती हैं, लेट नाइट आना होता है। अवॉइड पार्टी, हम लोग पार्टी भी अवॉइड करते हैं, है ना? कि ऑफिस पार्टी है, नहीं भाई 9 बजे से पहले घर पे होना चाहिए क्योंकि सेफ नहीं है ना? तो यही चीजें हैं, बहुत फेयर है। मे बी हमें भी इस पे काम करना चाहिए। और ये इस वजह से नहीं है कि सिर्फ कि लोग अवेयर नहीं है। थोड़ा सेफ्टी कंसर्न्स भी है कि लड़कियां क्या है ना, अवेयरनेस नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर मान लो कल को किसी लड़की के साथ, देखो मैं ओपन माइंडेड हूँ, मैं बहुत चीजें कर चुकी हूँ, बहुत चीजें फेस करी हैं। तो आई कैन स्पीक माई अबाउट माई सेल्फ, है ना? आई कैन टेक अ स्टैंड। बट दोज वुमेन जो अपना स्टैंड ही नहीं ले पाती हैं, दोज हु आर नॉट अवेयर ऑफ इट, सो वो क्या करते हैं, छुपा ले जाते हैं चीजें ना। कि अगर इस लड़के ने बोल दिया, अरे यार छोड़ो, इग्नोर। इग्नोर सबसे बड़ी एक तरह से उस चीज को ना स्टार्ट कर देता है कि इग्नोरेंस। कि अगर उसने कुछ कह दिया तो इग्नोर कर दो। नहीं, इग्नोर करना ही वो एक स्टेप दे देता है सामने वाले को कि वो आगे भी किसी और के साथ भी करेगा। तो Absolutely. फर्स्ट ऑफ ऑल इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा भी चीज है, अगर किसी ने बदतमीजी से भी बोला है तो आपको उसको जवाब देना पड़ेगा उसी टाइम। यू कांट वेट फॉर ना कि कोई और आए और आपके लिए स्टैंड ले, कोई और आपको सपोर्ट करे, है ना? तो आप अपने लिए बोलना शुरू करो, धीरे धीरे चीजें ही आएंगी। और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको लग रहा है कि इट इज नॉट अप्रोप्रिएट, यू कैन टेक योर स्टैंड। आप इवन लीगल एडवाइस भी ले सकते हो, Hmm. Hmm. कैन गो फॉर अ लीगल एड। Hmm. आप जाओ बात। बट मैंने ये चीजें भी देखी हैं कि लड़कियां जाना नहीं चाहती हैं क्योंकि सबसे Hmm. पहले जज लड़कियों को कर लिया जाता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, इतने तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, वो फेस नहीं कर पाते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। सामने से। तो क्वेश्चन फेस करना भी आना चाहिए अगर आप लीगल एड के लिए जा रहे हो, क्योंकि वो तो उनका ड्यूटी है, दे विल आस्क द क्वेश्चन। बट हाँ, आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा बहुत अवेयरनेस इज मस्ट। इग्नोरेंस नहीं होनी चाहिए। इग्नोर कर दिया तो आपने उसको एक तरह से बढ़ावा ही दे दिया कि वो आज आपके साथ कर रहा है, या आज आपके साथ हुआ है, कल शायद किसी और लड़की के साथ हो जाए, है ना? तो ये चीजें हैं, अवेयरनेस, एजुकेशन इज मस्ट। All the points you have made are very, very significant, relevant, valid.
पर you'll अंडरस्टैंड कि क्योंकि हमारा मेन ताल्लुक ड्राइववे देवी में मानसिकता से है, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से है, मैं उस दिशा में थोड़े थोड़े और सवाल आपसे करना चाहूंगा। सो लेट्स कम टू थिएटर नाउ। अपनी जब ऑफलाइन भी बात हुई थी, आई रिमेम्बर कि यू हैड सेड अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, एंड थिएटर में हम देखते हैं, ये आम बात है, विच इज़ अ वेरी एडमिरेबल थिंग, दैट काफी बार थिएटर डायरेक्टर्स, प्ले राइट्स, एक्टर्स, जिन विषयों पे, जिन मुद्दों पे आप लोग प्लेस करते हैं, दोज topics or themes themselves are controversial, or it's very possible that the theme or the play or the story itself will attract a certain amount of attention. Attracting attention will always include negative attention. मैं ये समझना चाहता हूं कि एक सिटी में जहां पे ऑलरेडी you don't feel a sense of a lot of safety, on top of that you are let's say you do this very controversial play, जिसकी और बहुत लोगों का की सोच है कि नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक बात नहीं है। मैं आप मेरा सवाल ये है कि ये जो सेंस ऑफ सेफ्टी एक ह्यूमन बीइंग के भीतर होती है, ये हम बहुत बार मान के चलते हैं, इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ फंडामेंटल राइट ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग टू फील अ सेंस ऑफ सेफ्टी। नाउ, जब आप इतने समय उस सेंस ऑफ सेफ्टी के बगैर रहते हो, फर्स्टली व्हाट डज इट डू टू योर स्टेट ऑफ माइंड? हम ये ऑफन देखते हैं कि कई लोग बहुत एक तरह से उनकी पर्सनालिटी भी बदल बदल जाती है। सम पीपल आउट ऑफ दैट लिविंग लाइक दैट फॉर इयर्स एंड इयर्स, वो थोड़े पैनिक्ड से ही रहते हैं, वो जल्दी से डर जाते हैं, जल्दी से चौंक जाते हैं। सो देर आर साइंस एंड traits that you develop in your personality, क्योंकि आप इतने समय से एक उस तरह के वातावरण में हो, एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट you also take these very brave risks in terms of your acting and the kind of plays you choose to do. So, um, is Neha, you personally, the kind of person कि आप इन इन चीजों के बारे में सोचते हो, या you've gone beyond all this? मैं लाइक ऐसा, जैसे आपने मुझे बोला अभी कि आप लोग ऐसे प्ले भी बनाते होंगे जो कंट्रोवर्शियल भी होते होंगे, तो जब हम प्ले शुरू करते हैं ना, तो उससे पहले ही हमें पता होता है कि भाई हेट तो मिलेगा। जरूरी नहीं है कि अच्छी चीजें हो, कुछ लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, कुछ लोग हेट भी करते हैं। तो वो तो एक्सेप्टेंस है हमारे अंदर इतनी कि हाँ मिलेगा अपने को हेट। हुए भी है बहुत, मतलब एक तरह से बैन कहूंगी, बैन भी हुआ है। हालांकि अवार्ड मिल गया था उसके बाद, बैन होने के बाद भी। बट हाँ हुआ है, क्योंकि हम लोग ऐसे टॉपिक्स उठाते हैं ना। देखो, हम्म। थिएटर, स्टेज थिएटर, चलो ठीक है, आपने जो प्ले लिखे हुए हैं वो कर दिए, आपने अपनी एक्टिंग एनहांस करने के लिए कर दिए। पर थिएटर का मेन अगर मोटिव अगर देखा जाए, एक आर्टिस्ट का मोटिव देखा जाए, टू स्पीक फॉर द वर्ल्ड, सोसाइटी एब्सोल्युटली। के लिए बोलो, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो हम उससे नहीं हट सकते ना। ये तो हमारा बहुत टाइम से चला आ रहा है कि थिएटर वाले लोग आवाज उठाते हैं, नुक्कड़ के जरिए उठाते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं, स्टेज प्ले करते हैं। तो हम लोग हमेशा एक मोटिव डालते हैं उस चीज में ना, कि एक मोटिव होना चाहिए, सोसाइटी को पता चलना चाहिए। हालांकि स्टेज थिएटर दिल्ली इंडिया की बात करी जाए, तो मुझे नहीं लगता स्टेज थिएटर बहुत लोग प्रेफर करते हैं। वो हम्म। वही लोग प्रेफर करते हैं जिन्हें बहुत पसंद है। अगर मैं हाँ, पर कहूँ कि वो मेरे जो उस उसको स्टूडेंट्स हैं, उसको प्रिफर करने के, नहीं करने के तो बहुत सारे कारण हैं, बिकॉज बहुत इट सारे इट कारण। रेंजेस फ्रॉम नॉट वांटिंग टू टेक द रिस्क टू हम्म उसमें हम्म हम्म क्या उसमें मतलब आप एक तरह से मनी इज मच लेसर वगैरह वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल, वो थोड़ा है कि एक्सपेंसिव भी काफी रहते हैं, इस वजह से भी। तो हमने बहुत प्ले भी करे हैं, कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं, है ना। उसके बाद अगर देखा जाए, एज अ वुमेन, कितना भी कुछ भी कर लो, जैसे आपने मुझसे पूछा कि एज अ लड़की आप, मतलब एज अ वुमेन, हेलो, या, सो एज अ लड़की, एज अ वुमेन मैं बोलूंगी, होती हैं चीजें, बहुत चीजें करी हमने। एक प्रोस्टिट्यूट पे भी टॉपिक उठाया था, है ना।
हमने मेंस के लिए भी टॉपिक उठाया, मीडिया के लिए भी टॉपिक उठाया, ठीक है। तो बहुत चीजें होती है, एक तो रिसर्च बहुत काम आती है ना। रिसर्च बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये ना हो ना कि सामने वाला जो आपको ऑलरेडी कर चुका है कि हाँ इन्होंने तो गलत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक उठाया है, वो आप पे फिर लॉजिक पे बात करे, है ना, नंबर्स पे बात करे। तो आपको उसके लिए अवेयरनेस होना इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। सेकेंड थिंग, सॉरी, आपका क्वेश्चन मैं भूल गई बात करते नहीं नहीं नहीं, करते। कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक्चुअली अभी मैं अपोलोजाइज करने वाला था कि मैं वो बिल्कुल स्टक रिकॉर्ड की तरह हो गया हूं, क्योंकि मुझे ये समझना है नेहा, एंड आई टेल यू टू योर फेस एंड ऑल आर ऑडियंस, जब अपनी पहली बार बात हुई थी तो मुझे आपकी पर्सनालिटी में एक सबसे अच्छी और सरप्राइजिंग चीज ये लगी कि you know you've gone through certain experiences because you're a woman living in Delhi NCR and आप वहां पली बड़ी हैं, and उनके बावजूद there is this um, there is this carefreeness that you have। तो ये आपने कुछ एफर्ट डाल के कॉन्शियसली डेवलप किया है? was there a point at which नेहा had become quite scared and सहमा हुआ? ये कैसे आ गया है ये? ये देखो, स्कूल तक तो मेरा ऐसा था कि घर पास, स्कूल पास में ऐसा जाना वाना कुछ ऐसा लाउड नहीं था, ठीक है। जो चीजें मैंने सीखी वो कॉलेज लाइफ में सीखी, ठीक है। कॉलेज लाइफ में क्या हुआ कि आई वॉज वेरी सेंसिटिव, और ये ना कि कोई चिल्ला दे तो रो दो, है ना, कोई डांट दे, कोई कुछ कह देगा, ये सबसे बड़ा पॉइंट था मेरा जब मैं कॉलेज से स्टार्ट किया था मैंने। उसके बाद जब मैं लोगों से मिलते गई, जब मैंने थिएटर ज्वाइन किया, थिएटर ने मेरी लाइफ में सबसे बेस्ट चीज करी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ा दी, चीजों को सोचना, नजरिया। कहा जाता है कि थिएटर जो एक आर्टिस्ट होता है ना, वो एक नॉर्मल लोगों से ज्यादा अलग सोचता है। हम्म वो हर चीज में डीपनेस देखता है, बैक हम्म स्टोरी हम्म देखता है ना। हम्म तो इससे, और सेकंड थिंग, मेरा जो ओपन नहीं होना था कि यार ये कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें थोड़ी करते हैं पब्लिक में। वो जो थिएटर में जब हमारा ऑडिशन हुआ था ना, तो इवन मैं ऐसी थी कि ऑडिशन में कुछ चीज ऐसी पूछी जा रही थी जो कि बियॉन्ड दैट थी। हम्म तो हम्म मैंने बोला यार मैं दूं ऑडिशन या ना दूं। फिर हम्म मैंने बोला यार एक बार देख लेते, क्योंकि थिएटर मुझे छोड़ना नहीं था, मैंने स्कूल में भी करा था। मतलब ये नहीं तो क्या। तो हम्म मैंने जब ऑडिशन देखा, ऑडिशन दिया, उसके बाद हमारे जब प्रैक्टिस होना शुरू हुआ, उसके बाद मुझे पता चला कि यार लड़के सिर्फ भाई नहीं होते हैं, दोस्त भी होते हैं। एक ये वाला पॉइंट भी आया। और सबके साथ सबके साथ बैठना, वो सर्कल में बैठना, फियर हटा देना किसी भी चीज का। तो वो चीज थी मेरी, उस मतलब थिएटर ने बहुत बहुत ज्यादा चीजें मेरे में इम्प्रूव भी करी हैं। हम्म बट हाँ, अब मेरा ये है ना कि हाँ, माना दिल्ली रेप कैपिटल है, माना दिल्ली इज नॉट सेफ, बट क्या कर सकते हैं। मतलब अगर बैठ जाए घर में तो इट्स नॉट द सॉल्यूशन, एब्सोल्युटली। किसी भी लड़की के लिए नहीं है। अगर मैं नहीं करूंगी एज अ एजुकेटेड वुमेन, एज अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय जो इंडिपेंडेंट भी है, अगर मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा, है ना। एज अ इंडिविजुअल देखा जाए तो एब्सोल्युटली। मैं एक अच्छा अर्न कर रही हूँ, ठीक है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, आई एम ऑल्सो एजुकेटेड, पढ़ भी रही हूँ, पढ़ाई भी कर रही हूँ। अगर मेरी जैसी लड़की नहीं लेगी स्टैंड, तो मैं किसी और से एक्सपेक्ट नहीं कर पाऊंगी, है ना। और इवन हम लोगों ने सोसाइटी के बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, उठाए हैं, बहुत चीजें पढ़ी हैं, अपनी अपनी अपने को उस जगह रखा है। तो अगर हम नहीं करेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता मैं किसी और लड़की को सजेस्ट कर पाऊंगी कि तू ये कर। या कोई लड़की मेरे से पूछेगी कि दीदी मुझे ये करना है या नेहा मुझे ये करना है, तो मैं कैसे करूँ। तो वो तब कर पाएगी ना जब मैंने खुद किया हो वो चीज, मैंने खुद उससे मूव आउट करा हो, है ना। मैं खुद बाहर निकली, कहाँ मैं नहीं निकलती थी घर से बाहर, फिर मैं घर से बाहर निकली, पूरी दिल्ली घूमी, दिल्ली से बाहर भी गई हूँ अकेले, है ना, सोलो ट्रेवल, अकेले रहना भी मैंने सीखा है, ठीक है। तो वो चीजें अगर मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है ना, तो मैं किसी और को सजेस्ट भी कर पाऊंगी, मैं कुछ कर पाऊंगी किसी के लिए। इतनी सी जिंदगी, अगर किसी के लिए कुछ कर ना पाओ, मतलब एक होता है ना मरते समय तक याद रहेगा वो चीज की, हाँ मैंने ये करी थी चीजें, तो वो हाँ, होना but you know, चाहिए एटलीस्ट, थोड़ा सा स्टेप। the things that you are saying very casually are very powerful things, Neha, and they can really inspire एक पूरा एक पूरा पॉपुलस जो एक जगह में रहता है और एक सर्टन
तरीके से सोचता है और एक सर्टेन परिस्थितियों में बड़ा हुआ है, उनको वो ही सेम लिबर्टी, फ्रीडम और अपने आप को वो शक्ति प्रदान करने के लिए, द थिंग्स दैट यू आर सेइंग इन योर ओन लाइफ एक्सपीरियंस इज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल, विच इज व्हाई आई वांटेड टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन। क्योंकि जो स्टेप्स हम अपनी निजी जिंदगी में लेते हैं अपने लिए, उनका एक पॉइंट के बाद एक बहुत ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट बन जाता है और पर्पस बन जाता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, दिस इज सो व्हाट आई या, वाज। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू हियर दैट। एक इसका लास्ट पहलू मैं जरूर चेक करूंगा। जैसा हम देखते हैं, पढ़ते हैं और थोड़ा बहुत अनुभव करते हैं, particularly when it comes to public spaces, that is where the threat perception tends to go higher. आप अंडरग्राउंड सबवे में गए, आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, दीज आर द काइंड ऑफ प्लेसेस एंड सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस जिनमें और भी भय का अनुभव होता है, बिकॉज दीज आर यूजुअली, जैसे कोई गली है, वहां पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, यू नो दोज काइंड ऑफ प्लेसेस एंड स्पेसेस। ऑब्वियसली यू नो, ये हम क्या मान के चल सकते हैं कि इन दोज काइंड ऑफ सेटिंग्स ऐसा नहीं है कि तुम्हें अब डर नहीं लगता है। हम्म। आई एम गेसिंग कि लगता है, बट यू चूज टू, एक सतर्क टाइप ऑफ वे में यू चूज टू स्टिल गो थ्रू विद दैट, अदरवाइज एज यू सेड घर पे थोड़ी बैठेंगे। एग्जैक्टली exactly. तो जैसे आपने बोला कि लाइट नहीं होती उस जगह पे जाना, तो मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी इसके लिए कि मैं ना कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही मैंने पार्ट टाइम जॉब्स करना चालू कर दिया था। इवनिंग कॉलेज था मेरा, तो मैंने सोचा कि टाइम यूटिलाइज करा जाए, घर पे नहीं बैठना है ना। तो मैंने एनजीओ ज्वाइन किया था इन फर्स्ट ईयर ऑफ माई कॉलेज, ठीक है। तो जो मैंने एनजीओ ज्वाइन किया, तो वहां पे ऑब्वियस सी बात है, स्लम्स एरिया में भी विजिट करना पड़ेगा, है ना, गली गली भी जाना पड़ेगा, बहुत सी चीजें होती थी, सैनिटरी के रिगार्डिंग गाइड अवेयर हम्म करना सबको, एजुकेशन के रिगार्डिंग अवेयर करना। तो मेरा बहुत पब्लिक डीलिंग में आ गया था कि मुझे एग्जैक्ट ग्राउंड लेवल पे जाके काम करना है। पहले ही होता है ना कि अभी हम लोग ऐसे सिट हैं एक एसी रूम में बैठे हुए हैं, वहां पे बात करना इज डिफरेंट एंड ग्राउंड करेक्ट लेवल करेक्ट। पे बात करना इज डिफरेंट, राइट। है ना। तो हम लोग वहां पे भी जाते थे। तो अब क्या हुआ कि स्टार्टिंग में देखो मेरा ड्रेसिंग सेंस इज डिफरेंट बिकॉज आई वाज अ कॉलेज गर्ल। बट अगर मुझे वहां जाना है, पब्लिक स्पेस पे जाना है या एनजीओ के थ्रू कहीं जाना है, तो वहां पे थोड़ा ड्रेसिंग के लिए होता था कि यार मैंने आज ये कपड़े पहने हैं, अगर मैं इस वाले जगह पे जाऊंगी तो अच्छा नहीं है मेरे लिए, ऐसा होता था। नहीं, और फिर मैंने वैसे बोला भी नहीं ये, यार, मेरे आई को आई एम कॉलेज सॉरी, आई जाना जस्ट वांट टू क्विकली जंप इन, ये कपड़ों का जो एक पर्टिकुलर मुद्दा है, ये बहुत अहम है, है। क्योंकि बहुत सारे लोग जिन विमेन के साथ अनफॉर्चुनेटली सर्टेन इंसिडेंट्स होते हैं, वो देयर फर्स्ट रिस्पॉन्स टेंड्स टू बी टू ब्लेम द गर्ल बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ क्लोथ्स शी वाज वेयरिंग। काइंड ऑफ क्लोथ शी वाज वेयरिंग, यस। सो क्लोथ्स को ब्लेम कर देना, तो एक होता है ना कि यार मुझे इस चीज के लिए तो ना बोला जाए, मैं नहीं सुन पाऊंगी, है ना। तो ये होता था कि कपड़े, फिर मैंने बोला क्या होता है यार, जाके देख के आते हैं। तो मैं जाती भी थी, ठीक है। तो क्या होता था कि आंटी को मैं, जैसे आंटीज बैठी हैं सारी, उनको मैं अवेयर कर रही हूँ अबाउट सैनिटरी हाइजीन एंड ऑल, ठीक है। तो शी वाज लाइक ऐसे आके मेरा टॉप ऐसे ठीक कर रही। तो मैंने बोला आंटी, इसको करने की जगह अगर आप ये कर लेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मतलब हंस के, क्योंकि बुरा भी ना लगे और करेक्ट पड़े, क्योंकि करेक्ट। मुझे बहुत अजीब लगा कि ये क्या था करके, कि मैं तो चीजें बताने आई हूँ आपको। तो हम्म बहुत सी चीजें थी, तो मेरी जो दीदी थी, जो मेरी ओनर थी, एनजीओ की ओनर थी, तो शी वाज लाइक नेहा यहाँ ऐसे ही है, मैं तो यूज टू हो गई हूँ, मैं तो करने लगी हूँ। मतलब दीदी देखो, यूज टू हो जाना है ना, फिर आप एक सेट कर रही हो, एक एब्सोल्युटली। आइडियल सेट कर रही हो कि आप यूज टू हो गई हो, आप कब कल को किसी और को भी बताओगे मैं यूज टू नहीं हो सकती हूँ इस चीज से, इट इज व्हाट आई एम। तो शी वाज लाइक ओके ओके ठीक है, अब एक काम करते, पब्लिक डीलिंग बंद कर देते। तो मैं लगा करेगा कौन फिर। अब ये हो गया ना कि अगर मैं अपने आप को चेंज नहीं कर रही हूँ तो मेरे से वो काम ही छीन लिया जाए, दिस इज नॉट द वे। अगर मैं नहीं जाऊंगी, मैं बात नहीं करूंगी, मुझे समझ में नहीं आएगा ना कि अगर कपड़ों के लेके चीजें हैं क्यों। अगर मैं उनको अवेयर नहीं कर पाऊंगी तो मैं किसी को नहीं कर पाऊंगी। ये मेरा अपॉर्चुनिटी, एक तरह से मैं अपॉर्चुनिटी देख रही थी उस चीज को, कि मैं ये एब्सोल्युटली, बात तो यहाँ पे करूंगी आई कि मीन क्या यू, थॉट है।
You've said two very, very significant things. एक तो, and you know, I knew that इस पूरे इंटरेक्शन का बेसिकली तथ्य यही होगा that you must take a stand, and you have been repeating that, and I'm very, very happy and inspired to hear this, क्योंकि अभी हम by coincidence we are anyway having this conversation with the backdrop of all the protests etc that have been going on, जो आपकी generation कर रही है. And what is that whole thing about? They finally taken a stand. And दूसरा एग्जैक्ट ये कि अगर आप वो एफर्ट लाइक यू आर सेइंग उन उस स्तर पे सोसाइटी में उन महिलाओं के साथ उन उस वर्ग के साथ नहीं करेंगे, तो वैसे भी वो सोच कैसे बदलेगी? फिर तो वो वैसे ही रहेगी. जाहिर सी बात है, कोई तो स्टैंड लेगा ना, कोई तो बोलेगा उस चीज के लिए। नहीं बोलेगा फिर तो वही चलता आ रहा है जो चीज, वो नहीं होंगी चेंज। हर चीज के लिए बोला गया ना, सती प्रथा गलत थी तो बोला गया ना, उसके लिए वो चेंज हुई ना। हो गई चेंज, टाइम लगा, हुआ चेंज। तो कोई अगर नहीं बोलेगा और स्टार्ट ही अगर इसी फील्ड से नहीं होगा, तो फिर सब लोग यूज टू हो चुके हैं कि आज जो हो रहा है होने दो। सबको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, और मैं तो ये भी कहूंगी कि हर लड़की को लेना चाहिए। लड़कियों के लिए ज्यादा होना चाहिए कि अगर लड़की अपना खुद का स्टैंड नहीं ले पाएगी, शी विल लुक कि कोई आए मेरा साथ दे, या कोई लड़का मेरे लिए बोले। आप जब तक खुद के लिए नहीं बोलना सीखोगे, आप नहीं बोल पाओगे, आप कुछ नहीं बिल्कुल, कर पाओगे बिल्कुल. उसके आई लिए। आई आई कंप्लीटली अग्री विद यू. वैसे भी ये जब हम छोटे होते हैं तो पर्टिकुलरली जो वेस्टर्न बच्चों के फेरी टेल्स वगैरह वगैरह में ये बहुत ज्यादा वो एग्जैजरेटेड कर दिया है ना, कि प्रिंस चार्मिंग विल कम एंड सेव द पुअर गर्ल. ये दिस होल कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली। हैज बिन इट्स रियली रियली बैड. एग्जैक्टली। Finally, let's come to the corporate world, because that is also a significant part of your life nowadays. और अगेन जाहिर सी बात है, हर क्षेत्र में अपने अपने तरीके से, इन यूनिक वेज, there is there are certain threats that exist. We hear all the time. एक कॉर्पोरेट बर्नआउट तो एक बहुत जनरल चीज है, बट ऑल्सो हमें पता है और हम पढ़ते हैं दैट इन कॉर्पोरेट सेटिंग्स, इन ऑफिसेज, there can be again a lot of harassment. It can be sexual in nature. What has been your experience generally with the corporate in the corporate life? कॉर्पोरेट का क्या रहा है जर्नी मेरा, मैंने तो आपको पहले ही बताया कि फर्स्ट ईयर से मेरा शुरू हो गया था काम वाम करना, कि मुझे चाहिए था कि मैं खुद से करूं। इवन फर्स्ट ईयर की फीस पापा ने भरी, उसके बाद पापा को पता भी नहीं है कि कॉलेज की फीस क्या थी। तो एक तो था भी गवर्नमेंट कॉलेज ड्यू, ठीक है। तो फीस भी इतनी ज्यादा नहीं थी उस टाइम पे, अब पता नहीं कितनी है। तो मैंने स्टार्टिंग अर्न करना शुरू कर दिया, तो मैंने बोला थिएटर के साथ कंटिन्यू करना, बट पैसा इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इंडिपेंडेंसी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो ताकि मैं खुद का स्टैंड ले पाऊँ ना। अगर मैं बोलूँ कि मुझे थिएटर करना है, तो इट विल रिक्वायर मनी, क्योंकि आना जाना हर चीज करना। तो अब मैं घर से मांगूंगी तो एक होता है ना, एक एक्सक्यूज हो जाएगा कि बहुत ज्यादा पैसा जा रहा है रेंट। बिल्कुल, मेरे को वो बिल्कुल. नहीं चाहिए था। मेरे को वो नहीं चाहिए था, तो मैंने बोला मैं खुद से करना शुरू कर लेती हूँ। तो मेरे स्टार्टिंग में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपने बोला ना हेरेसमेंट एंड ऑल, इवन ये थोड़ा बहुत गंदा माइंडसेट भी है लोगों का, कि अप्रोच करके लगी होगी हम्म. कॉर्पोरेट में, है करेक्ट, ना। करेक्ट. तो कि यहाँ पे अच्छा तेरा जॉब लग गया, किसी किसी का नहीं लगा। तो तेरा जॉब लग गया, हम्म. इस कंपनी में लग गया, हम्म. अप्रोच हुआ होगा। तो वो जो हम्म. अप्रोच वर्ड है ना, वो बहुत हम्म. गलत साउंड करता है। तो बिल्कुल, ये बिल्कुल. अलग माइंडसेट है, ये अलग माइंडसेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग कैरेक्टर डिसाइड कर देते हैं कि अगर ये बिना किसी उसके गई है, तो कुछ हुआ होगा, कुछ ऐसा रहा होगा। तो हम्म. एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत गंदा माइंडसेट है, ये मैंने बहुत फेस करा है। कहीं सिफारिश लगवाई होगी, ये करा होगा, वो करा होगा। तो ये अलग चीज है, ये तो मैंने चलो टैकल कर लिया इस चीज से। फिर जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप एंटर करते हो, बहुत लोगों से मिलते हो, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ लोग से मिलते हो। इवन दिल्ली और नोएडा और गुड़गांव इज अ हब ऑफ कॉर्पोरेट, है ना। तो नोएडा में तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली के लोग हों, बाहर के लोग आते हाँ, हैं, बहुत नेचुरली. अलग अलग सिटीज के लोग आते हैं। यूपी बिहार बहुत सारी जगह के लोग होते हैं। तो इसमें क्या है ना कि मेन जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करते हो, तो
स्टार्टिंग में बहुत अलग अलग लोगों से मिल लिया आप, ठीक है, हर हर लोगों का अपना कॉन्सेप्ट। और मेरी क्या आदत है ना, मेरी शायद ये गलत आदत भी है, मुझे ना बहुत फर्क पड़ता है कि आपकी थॉट कैसे है, हम्म आपके थॉट ऑन सर्टेन टॉपिक्स कैसे हैं। अगर आप हम्म सर्टेन टॉपिक्स मेरे से मिलते हैं तो हम्म वी कैन बी फ्रेंड, अदरवाइज हम्म कोई वैसा है नहीं कि मैं आपसे बात, ठीक है, नॉर्मल बात कर लेंगे, बट हम्म अगर आप चाहो फ्रेंड बनना है तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हम्म चीजें हैं कि थॉट मिलना इज इम्पोर्टेंट। थॉट नहीं मिलते तो कुछ कुछ तो ऐसा भी है कि एक इंसिडेंट शेयर करूंगी। हम लोग लंच कर रहे थे, फ्रेंड है मेरा, लंच कर रहे थे, तो लंच करते टाइम उसका एकदम से आया, उसका एज हो चुका है 28 29, तो ऐसी शादी की बात चल रही थी, तो मैंने कर लूं शादी, क्या हो गया, तो ही वाज लाइक मैं कॉर्पोरेट जो काम करती होंगी, जो वर्किंग वुमेन होंगी, उनसे शादी नहीं करूंगा। तो मेरा तो वहीं पे दिमाग खराब हो गया कि मैं भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ, मैं भी इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ। लाइक क्यों नहीं, फिर मेरे को ना क्यों का आंसर चाहिए होता है कि क्या रीजन है। हम्म कह रहा नहीं मेरे को नहीं पसंद, मैं कमा लूंगा, मैं तो कर सकता हूँ। मैंने बोला बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, अभी भी कर ही रहे हो, बट इसका क्या रीजन था। हम्म तो नहीं आंसर कर पाए, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये लॉजिकल बात ही नहीं है बिल्कुल। तो फिर उसके बाद से मैंने थोड़ा दूर दूर, क्योंकि नहीं मिलते थॉट। तो ये हम्म था। और उसके बाद जब हेरेसमेंट की बात आती है कॉर्पोरेट में, तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि हमें रियलाइज ही बहुत लेट होता है। हाँ बिल्कुल। फॉर फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बार बस में आ रही थी, क्योंकि दिल्ली में तो बस फ्री है, मैं फरीदाबाद में जॉब करती थी जब, तो मैं बस में आ रही थी, तो वन अंकल सिटिंग बिसाइड्स मी, बहुत एज होगी उनकी, तो वो थोड़े थे भी मोटे, तो मुझे लगा भाई बॉडी ऐसी है, तो उनका हाथ ऐसे था, तो मैंने बोला शायद सीट छोटी पड़ रही है इस वजह से अंकल का हाथ ऐसे है। देन थोड़े टाइम हो गया, उसके बाद आई रियलाइज कि नहीं कुछ तो डिफरेंट है। और फिर उस टाइम पे मेरा ऐसा था, मैंने बताया था ना, मैं बहुत बहुत चेंज करा है मैंने खुद को अपने ना इंसिडेंट्स के साथ साथ। तो अंकल ने ऐसे करा, फिर उनका हाथ बढ़ता गया, तो मैंने बोला यार मैं सही रियलाइज कर रही हूँ, वही रियलाइजेशन में टाइम, तो वही चीज था। फिर मैंने बोला नहीं ये तो कुछ गलत ही है, फिर मैं ऐसे खड़ी हो गई, बोला अंकल आप कर क्या रहे। फिर उनका ऐसा हो नहीं जाता विक्टिम कार्ड, नहीं मैंने तो कुछ करा ही नहीं है, हाँ वो कुछ ज्यादा ही डिफेंस हो जाता है। डिफेंसिव हो जाते हैं कि मैंने कुछ नहीं करा। फिर सब आंट फर्स्ट ऑफ ऑल आंटीज, उन्हें मेरा स्टैंड लेना चाहिए, तो शी वाज लाइक नहीं बेटा अंकल तो बहुत वैसे हैं, आपको गलत लग रहा है, ये है वो है। मतलब मुझे जो फील हुआ है, मुझे नहीं लगता किसी और को हुआ होगा, तो ये इधर है। तो मैंने फिर मार्शल बैठते थे उस टाइम पे, तो मैं हम्म। मार्शल को बोला, तो ही टुक अ स्टैंड। फिर वो जो रिपोर्ट्स वगैरह थी, मैंने ना कह रहे इग्नोर करते हैं, मैंने इग्नोर क्यों करना है, ऐसा था, आप लिखो रिपोर्ट, मैं आऊंगी, आपको पुलिस स्टेशन बुलाना बुलाओ। तो ये इंसिडेंट था, कॉर्पोरेट लाइफ में ही था, क्योंकि मैं आना जाना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो और अब कॉर्पोरेट के अंदर की बात करी जाए ना, तो मैंने अभी भी बताया कि नहीं पता चलता है, बहुत लेट पता चलता है। हालांकि बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कॉर्पोरेट्स में, बड़ी बड़ी कंपनीज में अगर ऐसा कुछ होता है तो यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू एचआर, और वो सब होता है। तो मेन ये है ना कि रियलाइजेशन बहुत लेट होता है, हम लोग सोचते हैं शायद हम ही गलत सोच रहे हैं, तो ये एक फर्क है इस चीज हाँ तो का। बट उससे मतलब उससे अगर हम लेसन ड्रॉ करें तो उस द अदर साइड ऑफ दैट लेट रियलाइजेशन कॉइन बेसिकली इज कि एक सर्टेन अवेयरनेस रखनी जरूरी है। रखनी जरूरी है कि आपको पता करना पड़ेगा कि ये एग्जैक्टली exactly क्या था, है ना। करेक्ट। वो बचपन में बच्चों को सिखाया जाता है बैड टच गुड टच, तो वो एग्जैक्टली exactly कब काम आना है ये अब पता चलता है कि ये अब काम आने वाला है, हाँ बिकॉज यू नो देर आर ये टू बचपन में सिखाता। फ्रेजेस। एक तो बहुत सुंदर फ्रेज है जिसे माइक्रो अग्रेशन कहते हैं। तो यू नो जो चीजें हम शायद नोटिस भी नहीं करते हैं क्योंकि वो उस समय इतनी छोटी छोटी या इनसिग्निफिकेंट लगती हैं। And one is, हम्म। a lot of predators are passive. तो वो ज्यादा मतलब वो बहुत एक सटल तरीके से करते हैं। एग्जैक्टली exactly. मुझे लगता है उन्हें बहुत यूज टू हो जाते हैं वो लोग इन सब चीजों से, तो उनको वो बारीकी से करना होता है ना, कि हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है, तो हम चीजों को बहुत अच्छे से समझ चुके होते हैं, है ना। जैसे आप अगर काम कर रहे हो तो आपको पता है कि आपका जो आपका डोमेन है उसमें क्या क्या डीपनेस है, क्या क्या चीजें हैं, तो आपको सब कुछ पता रहता है। तो मुझे लगता है उनके लिए वो चीजें बहुत नॉर्मल हो जाती है, तो दे आर अवेयर कि कब कैसे क्या करना है ना, वो फेस से भी अवेयर हो जाते हैं। तो वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे लिए तो बहुत डिफरेंट चीज है ये चीज। तो वही चीजें होती हैं बहुत और इवन ऐसा करना कि बहुत होता है ना कि फ्रेंडली फ्रेंडली बिहेवियर में कह दिया कुछ, क्या ही बुरा मानेगी।
ये इग्नोरेंस आती है कॉर्पोरेट में कि काम काम के बहाने बात करना शुरू करा, फिर उसके बाद ऐसी कुछ भी बोलना शुरू कर दिया, तो ऐसा होता है कि अरे यार ये तो ओपन चीज है। ओपन चीजें वो नहीं है। आप जिस चीज को फ्रैंक उसमें लेके जा रहे हो, इट इज नॉट फ्रैंकनेस, वो बदतमीजी है। उसे बदतमीजी का नाम देना चाहिए। तो वो चीजें भी हैं। और फिर वही कहूंगी कि आइडेंटिफाई करने में ही टाइम लग रहा है चीजों को। तो वो चीजें हैं, तो इसके लिए अवेयरनेस होना इज इम्पोर्टेंट। बट नॉट। एज वी काइंड ऑफ कम टू एन एंड एंड कंक्लूड दिस, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा दैट ओवरवेलमिंगली मेरे को बार बार जो ख्याल आ रहा है वो ये है, एंड दैट इज द मेन टेक अवे, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी पावरफुल एंड इंस्पायरिंग टेक अवे। यू सेड अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग। हम किसी भी सिचुएशन को दो तरह से देख सकते हैं। एक तो ये कि ये बहुत बड़ी समस्या है, और एक ये कि ये एक अवसर है और अपॉर्चुनिटी है। एंड आई थिंक इन दैट डिफरेंस लाइज द एसेंस ऑफ पावर, लिबर्टी, शक्ति, जो भी आपको नाम देना है, क्योंकि एक जो है रियलिटी वो है, दैट डज, उसका ये मतलब है कि थोड़े थोड़ा कॉशियसली, थोड़ी अवेयरनेस के साथ, थोड़ा सतर्क होके, बट गो अहेड एंड कीप मूविंग अहेड, है ना? एग्जैक्टली। करना पड़ेगा। And ये I होता है think ना, that's a सोसाइटी में रहना है तो होना चाहिए। absolutely, and I think that's a wonderful message, particularly from somebody young to other youngsters. And I'm just delighted क्योंकि as you can imagine हमारे बहुत सारे जो interactions और discussions mental health के दायरे में होते हैं वो काफी डिप्रेसिंग से हो जाते हैं. So it's very हम्म। very wonderful that we go away from this with an extremely positive and optimistic आउटलुक, जो आज के दिन बहुत जरूरी है with the kind of गड़बड़ that is happening. So thank you very much. Thank you for being part of the generation that has awakened the rest of the country that was sleeping. And wish you all the best. I hope I get to see one of your plays someday. ओके, And बिल्कुल। all the best. Take care. Thank you. या थैंक यू सो मच कार्तिक। हैव अ ग्रेट डे।